تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم و جابر بادشاہ کو ظلم کر دیا ہے۔ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یقین ظلم ہو رہا ہے، وہ دنیا کے اندر اب مسلمان مظلوم ہے، مسلمان کہیں محفوظ نہیں ہے۔ برما میں دیکھیے، برما میں مسلمانوں پر کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، زندہ آگ پھینکا جا رہا ہے، آگ لایا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت سے ویڈیو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ پر گاڑی چلائی جاتی ہے، ان کو روکا جاتا ہے، برما میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بم سے اڑایا جاتا ہے۔ منٹوں کے اندر یہ انسان جس کا نام جان ہوا کرتا تھا، بولا کرتا تھا، منٹوں میں انسان خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی نیند سو جاتا ہے۔ فلسطین میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آسام میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ ایک ایک جگہ پہ 100 بچوں کی قتل کیا گیا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں آسام کے اندر، ہو رہے ہیں۔ یہ بات ان کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس کے لیے کبھی مارتے ہیں، کبھی پیٹتے ہیں، کبھی کسی الزام میں جیل میں بھرتے ہیں، جیل بند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بخلائی ہوئی ہے، اس لیے نئے نئے طریقے اپناتے ہیں مسلمانوں کو جیل میں بھرنے کے لیے۔ ابھی جو ہے نئی چیز ابھی ہم سامنے آئی ہے، لوگ جہاد کے نام سے، لوگ جہاد کے نام سے یو پی کے اندر قانون بنا دیا گیا ہے، اسی طرح سے ایم پی قانون بنا دیا گیا ہے، اور اس قانون کے وجہ سے مسلمان نوجوانوں کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی لڑکیاں ہیں، یہ محبت کا معاملہ نہیں معاملہ ہوا کرتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو مذہب نہیں دیکھتی، محبت ایسی چیز ہے جو ذات نہیں دیکھتی، محبت ایسی چیز ہے جو شکل نہیں دیکھتی ہے، محبت ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ اس کو کون سے سمجھائے؟ یہ کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو سے محبت کر رہا ہے یا کوئی ہندو وہاں سے محبت کر رہا ہے، یہاں کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہاں کوئی جہاد کا معاملہ نہیں ہے، ایک چیز ہونی تھی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آج یو پی کے اندر تقریباً 54 مسلمانوں کو صرف محبت کے نام پر جیل بند کیا گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے غیر مسلم سے شادی کیا ہے محبت کر کے، یہ لوگ جہاد کے یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ لوگ جہاد ہے، نام نے دیا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، کچھ غیر مسلم مردوں لڑکوں نے بھی مسلم لڑکوں سے شادی کیا ہے، لیکن ان کو دل نہیں بھیج رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آج ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ حکومت ظالم ہے، اس وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں، جمعہ پڑھنے کے مسلمان ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا اندر مسلمان نہیں ہے، ہماری آتما مسلمان نہیں ہے، ہمارا روح مسلمان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبید اللہ اعظمی نے ایک بات کہا تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم یہاں پٹ رہے ہو اس لیے کہ تم ظاہر مسلمان ہو، اور تم وہاں ہی پٹو گے، وہاں جہنم میں چلو گے کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم یہاں پٹ رہے ہو اس لیے کہ تم نام کے مسلمان ہو، تمہارا نام مسلمان کا نام ہے، تمہارا نام عبداللہ عبدالرحیم ہے، یہاں پٹا جا رہا ہے۔ تم گائے گوشت کھاتے ہو، یہ پٹا جا رہا ہے۔ تم جو ہے جمعہ پڑھتے ہو، یہ پٹا جا رہا ہے کہ آپ تم وہاں بھی پٹو گے، وہاں جہنم میں جاؤ گے، کم جاؤ گے، تم ظاہر اندر تو تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان صرف نام مسلمان رہ گیا ہے، اس کا اندر مسلمان نہیں ہے، اس کا اندر جو ہے مال کی محبت بھری ہوئی ہے، مال کا خون بھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے قومیت کا بھوت بھرا ہوا ہے، یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی حیثیت اس سے ایک ہم جانتے ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں کہ لوگ جو کھیتی کرتے ہیں، جب جانور کو تنگ کرتا ہے تو وہ لکڑی کے اندر کرتا پہنا کر کے شرٹ پہنا کر کے کاٹ دیتے ہیں، اس خیال سے کہ جانور نہیں آئے گا۔ کچھ دن تو ایسا ہوتا ہے، جانور سمجھتا ہے تو آدمی کھڑا ہوا
लेकिन कौवा जो बहुत अकलमंद हुआ करता है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जाता है। अगर वो तो देखता है कोई हरकत से नहीं है तो आप उसे बैठता भी है और उसको दूसरा खत्म हो जाता है, जब आकर बैठते हैं। यही मसला मुसलमान का है। जब मुसलमान हकीकी मुसलमान था, हमारा इस्लाम हकीकी मुसलमान थे, तो जो कुफार उनके नाम से कहा करते थे। हमने तारीख पढ़ा है, तारीख जानते हैं। एक जमाना वो भी जमाना था जब एक मुसलमान बच्चा कहता था कि ऐ यहूदी रुको, यहीं रुको, मैं घर जाता हूँ, तलवार का तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो यहूदी की हिम्मत न होती थी कि वहां से हिले, वहां रहता था। मुसलमान बच्चा घर जाता था, तलवार का उसे काटता था। वो जमाना था। चूंकि उस वक्त मुसलमानों में ईमान था, मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों का दिल जो है ईमान से मामूर था। लेकिन जब मुसलमानों का दिल ईमान से खाली हो गया, मुसलमानों दिल जो है ईमान से खाली हो गया, तो फिर क्या हुआ? एक जमाना वो भी आया, तारीख में जमाना भी देखा है, हमने वो पढ़ा है कि वो जमाना भी आया कि एक यहूदी बच्चा कहता था कि ऐ मुसलमान तू यहाँ खड़ा रह, मैं भी घर जाता हूँ, तलवार लेके आता हूँ, तुम्हें कत्ल करूंगा। अब मुसलमान घर से खड़ा रहता था तो बात अलग करता था। सब बात ईमान क्या करती है। जब ईमान मजबूत होगा, जब ईमान में ताकत होगी, तो फिर दुनिया हमसे कांपेगी, थरथराएगी। हम रोना रोते हैं कि हुकूमत जालिम है, जालिम हुकूमत नहीं, जालिम हम हैं, क्योंकि हमने अल्लाह का हक अदा नहीं किया। हमने जिसका में पैदा किया गया था, हमारी पैदाइश गर्ज ये थी कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह की इताअत करें, रसूलुल्लाह की इताअत करें। हमारे गर्ज ये थी, हम इस गर्ज को बुला दिया, जिस नतीजे में अल्लाह ताला ने हम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया है। हमारे अमल की करतूत है। मैंने कहा, मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह की बात है कि ऐ लोगों कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कि ऐ लोगों कहो मैं ईमान लाया, इसमें दम जा, बाकी रहो। आज हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत ही दगरगू हैं, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। ऐसे में दो इस बात की थी कि मुसलमान अपने अमाल का मुहासबा करता, अपने ईमान का जायजा लेता, अपने नमाजों को देखता, अपने अमल को देखता कि हमारे अमल कैसे हैं, फिर अमल को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमान आज भी ख्वाब फरोश में सोया हुआ है, ख्वाब फरोश में पड़ा हुआ है, उसे कोई एहसास नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों, अगर आपने अपनी फिक्र नहीं की, याद रखिए तेरा हश्र बहुत बुरा होने वाला है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों कहो जो दम जाए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हूद के आगे, अल्लाह जो हूद का आयत है वह फरमाता है फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माअका वला ततगौ। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा का हुक्म दिया गया है वैसे ही दमे रहिए, वैसे ही कीजिए, जैसा अल्लाह हुक्म दे रहा है उसके मुताबिक काम कीजिए। वमन ताब माअका, जो वो लोग जो आप पर ईमान लाने वाले हैं, जो आप तौबा करने वाले हैं, वो भी वैसे ही करें जैसा हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हमको कह रहा है कि ऐ लोगों वला तकबू, हद से आगे मत बढ़ो। अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमारे लिए एक हद कायम किया है, हद को मत फैला दो। वो तरीका कार जो अल्लाह ने हमें दिया है उसमें अमल करो। अगर कामयाबी चाहते हो जन्नत मिल जाए, चाहते हो जहन्नम का राज बच जाए, चाहते हो कब्र की गर्मी, कब्र का अजाब तुम्हें न छुए, तो वो काम करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मशरूع किया है। ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए कामयाबी है, वरना फिर तुम्हारे लिए जहन्नम है, दुनिया के रब जिल्लत है, मरने के बाद दलील हो गई। हम जब अपने असलाफ को देखते हैं, हमारे असलाफ के यहाँ कैसी इस्तिकामत थी, कैसे उनके जज्बा इस्तिकामत था, जब उन पर मुसीबतें आती थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज भी मुसलमान दुनिया में इंसान में मुसीबत आ रही है। हमारे यहाँ NRC RCA किया जा रहा है, इसका मकसद इसका ये है कि मुसलमान कमजोर पड़ जाए। वो चाहते हैं मुसलमान हमारे हो जाए, वो चाहते हैं मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन याद रखिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। याद कीजिए उस वाक़या को जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका आका, उनका मौला उमय्या बिन खलफ उनको जुल्म ज्यादती करता था। जब बिलाल हबशी
ईमान लाए तो उमैया बिन खलफ उनको मारता था, पीटता था। इतना ही नहीं कि मारता था, इनके घर में रस्सी बांध दी जाती थी और कहता था कि ए लड़कों, उसको पहाड़ों के अंदर घिसेटो। अंदाजा कीजिए मक्का का इसकी सरजमीन पहाड़ी सरजमीन है, पथरीली सरजमीन है। बिलाल हबशी जो गुलाम थे, इनके घर रस्सी बांधी जाती थी और पूरे मक्के में जो घिसटते थे। भाई बिलाल हबशी दर्द से चीखते थे, कराते थे, लेकिन उनकी जबान बहुत था, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये उमैया बिन खलफ उनको मारता रहा, लेकिन उनके जबान से अहद का कलमा न छीन सका। कहने मतलब ये है कि उन्होंने इस बात को मंजूर किया कि मुझे तकलीफ हो जाए, तकलीफ को सहना गवारा किया, इसको गवारा किया। भैया ने कहा था कि ए बिलाल, इतना कह दो कि हम मोहम्मद के दीन से इनकार करते हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिलाल हबशी ने कहा था, क्या कहते हो, जान दी दी की खुशी की है, हक अदा हुआ, तुम जो करना है कर लो, हम मोहम्मद से नहीं फिरेंगे। आगे बढ़िए। है अम्मार, है यासिर, है सुमैया। अम्मार बेटा का नाम है, यासिर अम्मार के बाप है, सुमैया अम्मार की वालिदा है। जब ये तीनों ईमान लाए, ये तीनों जो है बनी मखजूम के गुलाम थे। बनी मखजूम मक्के में खानदान था, उसी के गुलाम थे। जब ये ईमान लाए तो इनके खानदान वालों ने इनको मारना पीटना शुरू किया, इनको ज़्यादती शुरू किया। इनको मारते थे, पीटते थे, अम्मार को मारते थे, यासिर को मारते थे, उनकी माँ सुमैया को मारते थे। मारते ही नहीं थे, एक दिन वो भी आया, तारीख का वो ज़माना भी देखा कि एक दिन धूप में, मक्के की धूप वो तेज हुआ करती है, धूप में इन तीनों को बांध दिया गया। हज़रत अम्मार को नंगा कर दिया गया, हज़रत यासिर को नंगा कर दिया गया, हज़रत सुमैया को नंगा कर दिया गया। कुफारे मक्का ये तीनों नंगा कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी बेहयाई की बात है। लेकिन याद रखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हज़रत अम्मार का ईमान कितना मजबूत था, यासिर का ईमान कितना मजबूत था। उन्होंने सबको गवारा किया। अंदाजा कीजिए, माँ नंगी है, सामने बेटा, जवान बेटा नंगा है, सामने बाप नंगा है, क्यों नंगा कर दिया गया है? तीनों का कसूर क्या है? क्या उन्होंने ज़नाकारी की थी? क्या उन्होंने चोरी की थी? क्या उन्होंने कोई और काम किया था? नहीं, इनका कसूर यही था। उन्होंने कहा था रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा बारहार अल्लाह है, मेरा हकीकी रब अल्लाह है, अल्लाह ही मेरा दाता है, अल्लाह ही मेरा मुझसे है। ये बाबा जिसको पूछते हैं हमारा रब नहीं है, ये लात ये मनात जिसको तुम पूछते हो हमारा रब नहीं है, और रब अल्लाह है। इनका यही दावा था। इस कसूर में तीनों नंगा कर दिया गया है। अंदाजा कीजिए, बात गौर करने की है। ये बात सिर्फ बोलने में आसान है, लेकिन जब हमारी बारी आएगी कितना भारी पड़ेगा। सोचिए, एक जो सहाबिया जो मुकम्मल ईमान वाली है, उनको कितनी शर्म होगी। कीजिए कितनी उनको कितना बुरा लगता होगा कि सामने जवान बेटा नंगा है, सामने माँ नंगी है, सामने बाप नंगा है, तीनों को नंगा कर दिया गया है, तीनों को बांध दिया गया है। कहा जा रहा है कि ए अम्मार, ए यासिर, ए सुमैया, तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अगर तुम आजादी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे तन पर कपड़ा आ जाए, कपड़ा पहन लो। तो तुम चाहते हो तकलीफ से बच जाओ, तुम जो है ए यासिर, तुम जो है इतना कह दो कि मोहम्मद के दीन को हम छोड़ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये अंदाजा कीजिए कितना बड़ा इम्तिहान था। हम और आप होते वहां पर क्या करते, सोचिए। लेकिन देखिए कितना मजबूत ईमान है। सुमैया ने कहा कि ए जालिम, तुम जो करना है कर ले। याद रखो, कल ही मेरे नबी का गुजर हुआ था, मेरे नबी ने कहा था या आला यासिर नमाज़ करना, ए यासिर घराने वालों सब लो, ये जन्नत है, जन्नती हो जाओगे। कभी मेरे नबी ने कहा था कि ऐसा भी हुआ कि फिर इतना ही नहीं कि इनको नंगा किया गया। एक दिन वो दिन भी आया कि जब मक्के के अंदर ईद का
कारगाह में बर्छी अबू जहल ने बर्छी मारी है तो सुमैया शहीद हो गई। कहने का मतलब ये है कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, हमारे सहाबा के नाम ने, हमारे इस्लाम ने ईमान के लिए बड़ी मुसीबतें झेली हैं। आपके पास जो ईमान आया है फ्री में आ गया है, आपके पास जो ईमान आया है लुकमत में आ गया है, इसे कदर कीजिए, इसे ज़ाया मत कीजिए। आपके पास जो ईमान आया है जिसको आपको मेहनत से नहीं आया है, इसलिए आप कीमत नहीं जानते हैं। क्योंकि उन्होंने इस ईमान को मेहनत से हासिल किया था, वो कदर जानते थे, वो जानते थे कि जिंदगी एक है। अगर जिंदगी 100 होती, सब 100 जिंदगी को इस दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर देते। उनका ये कहना हुआ करता था। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ये सहाबी रसूल हैं और बहुत बड़े इस्लामी कमांडर भी हैं, फौजी भी हो चुके हैं। ये जब ईमान लाए तो इनकी माँ ने कहा कि मैं न खाना खाऊंगी, न पानी पीऊंगी, न मैं साए लाऊंगी, यहाँ तक कि तू मोहम्मद की चिंता कर दे। एक माँ जानते हैं बाप एक बच्चे को माँ से कितना प्यार होता है, बेटे को माँ से कितना प्यार होता है, कितना लगाव होता है। तो आज माँ समझ रही थी अगर ऐसा करूंगी तो मेरा बेटा मोहम्मद को छोड़ देगा। तो जहाँ माँ कहती है, माँ चूंकि काफिरा है, माँ मोमिना नहीं है, बाप भी काफिर है, बेटा ईमान ला चुका है, साथ नमाज ला चुके हैं। माँ कहती है ऐ मेरे बेटा न मैं खाना खाऊंगी, न पानी पीऊंगी, या तो दीन मोहम्मद से निकाह कर दो। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, माँ खाना नहीं खाती है, माँ बिल्कुल मरने के करीब है, बिल्कुल परेशान है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब भाई तो साथ देख रहे हैं कि मेरी माँ नहीं खाना खा रही है। साथ कहते हैं अपनी माँ से, कहते हैं ऐ मेरी माँ तेरी एक जान है, अगर 100 जान होती और 100 जान को इधर भूखे मार देती फिर भी मैं मोहम्मद से खुले वाली नहीं हूँ। मोहम्मद का दीन मैंने कबूल कर लिया है, इसे भूलूंगा नहीं। तुम भूखे मर जाओ, मरती हो मर जाओ, कोई बेपरवाह नहीं है। ये ईमान की आवाज़ थी, ये आवाज़ थी इस्लाम की, क्योंकि वो लोग थे जो पक्के ईमान वाले थे। आज जैसे नहीं हम थोड़े से फायदे के लिए ईमान बेच देते हैं। हमारे ईमान के ज़माने में एक चाय हुआ करती है, हम चाय को ईमान बेचा करते हैं। हमारे ईमान के ज़माने में 500 रुपये को बासा दे दे हम ईमान बेचा करते हैं। लेकिन वो सहाबा किराम थे जिनके यहाँ ईमान की सबसे कभी दौड़ हुआ करती थी, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, ईमान का सौदा बर्दाश्त नहीं किया है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन एक दो वाक़यात हम खत्म करेंगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल, कौन नहीं जानता, ये मुहद्दिस हैं। अहमद बिन हंबल ये मुहद्दिस हैं जिन्होंने तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अहादीस ला रखा है। 3 लाख से ज़्यादा अहादीस के हाफिज हैं और इनकी किताब मुस्नद अहमद बिन हंबल हर आलिम पढ़ा करता है। इनके ज़माने में एक फितना शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने कहा था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। उनके ज़माने में बगदाद के इलाके में एक फितना शुरू हुआ था। किसी ने कहा था कुरान अल्लाह का मखलूक है। अहमद बिन हंबल ने कहा नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। इसके जुर्म में गुजरात का बादशाह था, बादशाह ने 3 बादशाह लगातार मुतसिम बिल्लाह उसका बेटा लगातार 3 बादशाह ने इन पर इनको मारता था, इनके दलाल देता था कि इन्हें मारो पीटो और इनको कहो कि इस बात का इकरार करें कि कुरान अल्लाह का मखलूक है। उस ज़माने इतने भी उलमाए किराम थे, सबने बात मान ली थी। कुछ लोग जो मानते थे कि अल्लाह की मखलूक नहीं है, लेकिन वो दिल से जानते थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, लेकिन डर से कह दिया था कि अल्लाह की मखलूक है। लेकिन 3 आलिम अहमद बिन हंबल और मूसा बिन नूह इस तरह के आलिम थे जिसने कहा था कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। अहमद बिन हंबल से इब्तिदा ने कहा क्या भतीजे, जैसे और उलमा ने तौलिया क्या है, तुम भी पता कर लो, तुम भी जमात से कह दो कुरान अल्लाह की मखलूक है। तुम दिल से मानो अल्लाह का मखलूक नहीं है, अल्लाह कलाम है। जबान से कह दो, जबान से कहने को हर्ज नहीं है।